तो कश्मीर लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH लाइव। आर्टिकल 370 मामले पर सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट में आज 13वें रोज की समाअत शुरू हो चुकी है। अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश कर रहे हैं अपना मौकफ। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मरकज किसी भी वक्त इंतखाबात के लिए तैयार है। रियासती मरकजी इलेक्शन कमीशन करेंगे फैसला। रियासती व मरकजी इलेक्शन कमीशन करेंगे फैसला। सरकार किसी भी वक्त, यानी कि उनका कहना यह था कि मरकजी हुकूमत जो है, सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मरकज यानी मरकजी हुकूमत किसी भी वक्त इंतखाबात के लिए तैयार है और रियासती और मरकजी इलेक्शन कमीशन करेंगे फैसला। वोटर लिस्ट भी तकरीबन तैयार है। पहली बार जम्मू कश्मीर में 3 सतही पंचायती राज निजाम नाफिज किया गया। पहला इंतखाब पंचायत के लिए होगा और साथ ही बताया गया कि पथराव के वाकयात में 97% की कमी आई है। Televised, all this is being televised and all of this being recorded. So these facts come on the record. They are part of the public space and people feel what a great thing has been done by the government. This creates a problem. That's why progress never creates problem. I'm sorry. Allow me. We got your point. I think we have clarified it. Yes. That the constitutional challenge will be dealt with by the Supreme Court on constitutional grounds. That's right. None of this should enter into the... And they have not argued equity in defense to your constitutional challenge. That's all. That's all. Yes. I suppose these statements are otherwise in the public domain. In elections are not in the public domain. Therefore, public will pursue it. Attorney General, you are meeting the constitutional challenge on constitutional argument. Which I You must address this matter like any other constitutional matter as a constitutional issue which we have to confront. There's a lot of facts. But when I answer the question of election and the statehood, these figures will go into our decision. That you made. That's not part of the public space. And that Mr. Sibal has also clarified. They can't be in that. Internal. We needn't labor this issue. We are all now clear on Yes. on conceptual grounds. Mr. Attorney now will hear you. Please, Your Lordship. I don't want... तो ये हियरिंग की लाइव तस्वीरें हैं जो सुप्रीम कोर्ट में very deep engagement हियरिंग चल रही है, and उसकी सीधी तस्वीरें। Corruption were on the lighter side. My learned friend said that there are some people who are under house arrest and therefore there is no one word. That means the right people are in the house arrest. 5,000 people. Let's not make a mockery of democracy. 5,000 people were under house arrest at that time. 144 was throughout the state. This court, Manadina judgment has recognized that. But the internet was shut down and then they are saying there were no bunds. Why? How can there be bunds when people can't even go to hospital? People could not go to hospital because of the bunds. They died. I wish a single... Let's not go into all this. I wish we don't have dialogue. Mr. Attorney, Mr. Sibal, we have, right from the inception of the hearing, we have heard this matter in a sense of dispassionateness, Absolutely. a sense of objectivity which must govern an answer to a constitutional challenge. We request both sides. Let's maintain it at that level. Absolutely. Because, yes. I don't think neither the solicitor nor me had entered into the domain to try to color the mind of the judges. We've not done that. I don't know about that. All right. Yes, Mr. Attorney. Sides say that the famous principle versus rules and the hard cases thesis to Dworkin. One wonders we are not in a situation like this. We're leaving, taking off from what where I left day before yesterday. There's a couple of digressions I would like to probably play before a lot before I. Could we talk about the intent of a law? Wittgenstein, who co-authored with Bertrand Russell, and his famous philosophical investigation. He talks about a signpost. How do we know what a signpost means? There must be a practice of using the signpost. And an understanding we develop over the using of the signpost. Without that practice and understanding, the signpost means nothing. So this principle has been used in various circumstances to bring closer. If there is an understanding about a law on the basis of a practice, then interpretation follows one course, one trajectory. But if there is a lack of understanding or conflict of understanding, interpretation heads in another trajectory.
Therefore, when you are trying to understand the intent and connect with the content of Article 370, you have to keep in mind what went into the original author's making of 370 and what has happened over a period of time by the practice of using Article 370. So, a text sometimes, by reason of its aging and the use of the text, may demonstrate a certain practice which may show in a slightly different direction. That's why in the context of desuetude, two important principles come. Disuse plus a contrary practice. I won't get into the desuetude doctrine, it's not necessary for a purpose. I don't want to flag that. We are trying to understand 370 in a perspective. We have all these complexities. It's not really a case of reading the text, looking at the text and the context and arriving at a meaning. We are confounded by the practice of Article 370, whether in conformity with the original intent or in deviation from it. So the court is now called upon to look at the age of the text and the use of the text and how in current times the President understands both the original text and the use of the text, and the President now understands is what I would like to do with the text. I left therefore yesterday on this proposition when the President is not precluded for what he called the taking stock of what Article 370 has done over a period of time. This taking stock is written into Article 370. So while we do that, how the President may take stock and how the court will be called upon to have a glimpse of understanding of what the President intended to by taking stock, I just want to place 5-6 propositions in the context of concession against absurdity. These are all gathered from books on interpretation of statutes. Because the presumption against absurdity will, number one, avoid an impossible result. Presumption. It will also avoid an unworkable or impracticable result. I'll put them all together and hand it to your lordships now. It will also avoid an anomalous or illogical result. And connected to that is to avoid a futile or a pointless result. The third one you said, Mr. Attorney? First one is an impossible result. Third one. Third one, an inconvenient result. An anomalous or illogical result. An anomalous or illogical result. The final one, I said a futile or a pointless result. All these will go into courts looking again the presumption against absurdity. So court will avoid a construction. It requires a person who that which is impossible. The doctrine of impossible is contradicted to different, but when it comes to textual impossibility or constitutional text, it may stand on a different footing. That's why all these principles have a certain importance in construing Article 370. So I referred briefly the other day about this presidential poll judgment of your lordships. That is 1974 to SCC 33. Before I take your lordship to the 1974, it is a 143 reference in the context of holding elections. Before I take your lordship to that, let me make a few observations. No, that's good. It's not part of the PDF because
It's not part of the compilation. Sir. Yes. So we're trying to look at the proviso to clause 3 of Article 370. So which is the part of this judgment you want us to see? Para? I'll give the paragraph, Your Lordship. We have it opened up and you have it on the screen as well, sir. We have paragraph. I'll just summarize the proposition was the presidential election had to be held. Gujarat Assembly was dissolved. Therefore, the electoral college was incomplete. But the argument was, without the electoral college becoming complete, you can't hold a presidential election. Court said, I read Articles 55, 54, etc., and come to a conclusion. It's a mandate that you will hold the election before the president term expires. Right. Therefore, the lack of the electoral college not being complete will not come in the way. So that unless you fulfill that impossible, that the court says you must, the argument was, you must have the electoral college completed before you hold the elections. For the mandate of holding the election. You're stretching that to our case because according to the conditions for the application of the proviso to Article 373 are absent, and therefore the substantive part cannot be rendered into disuse merely because of the absence of the Constituent Assembly. Therefore, I come to the arguments on the other side currently. Now, there is no principle in Give us a small para so we are then done with this judgment. These paragraphs 5, 4, 5, 12, 13, 15, 20, 21, 29 and 47. There they look at the impossibility of performance. How do they formulate it? Just let's see it in a minute. I'll presently come to it. It's 7 judges, so we can just look at maybe that one or two sentences and how they formulate it. Give me paragraph. Also, just see paragraph 4 and 5. जिस तरह से जो उम्मीद की जा रही थी कि जवाब आएगा केंद्र सरकार का जो पक्ष रखेंगे एसजी, तो क्या लग रहा है कि ये जवाब उसी दिशा में है जैसा जिस तरह की चर्चा की जा रही थी? और आपके साथ कुछ लोग भी हैं शायद या कुछ मेहमान हैं, मनोज जी। हाँ, देखिए विशाल, ये आज काफी इंतजार था क्योंकि 2 दिन पहले ही तुषार मेहता ने ये कहा था कि वो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट लेके आएंगे सुप्रीम कोर्ट में, और आज उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है उस पर किस तरह की प्रक्रिया होगी वो हम जानने की कोशिश करेंगे। हम अभी इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे यहाँ जो जम्मू प्रोविंस के जो प्रोविंशियल सेक्रेटरी हैं शेख बशीर अहमद, उनसे बात करेंगे, उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर नेशनल कॉन्फ्रेंस का इस पर क्या कहना है। सर, जो तुषार मेहता ने ये कहा है कि इलेक्टोरल रोल्स जो हैं, इलेक्टोरल रोल्स अपडेट हो रहे हैं और काफी हद तक अपडेट हो चुके हैं, काम पूरा हो चुका है, सरकार तैयार है इलेक्शन करवाने के लिए, लेकिन अंतिम फैसला जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेना है। आप किस तरह से ये जो फैसला है, लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव कब अनाउंस होंगे। अब सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता जी ने जो ये कहा है कि हम तैयार हैं, वो पहले भी कहते आए हैं कि इलेक्शन तैयार हैं, और जो इलेक्टोरल रोल्स का बहाना ये कर रहे हैं वो ऐसा नहीं है। वो बहुत अरसा पहले उसकी रिवीजन हो चुकी है, उसके रोल्स भी सामने आए हैं, लेकिन सवाल यह है कि वो अभी ये इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर डाल रहे हैं कि उनको फैसला करना है, वो करेंगे तो फिर हम करेंगे। तो जब इलेक्शन कमिश्नर को पूछते हैं तो वो कहते हैं जब गवर्नमेंट कहेगी कि हालात ठीक हैं तो फिर करेंगे। तो इसलिए ये वेलकम स्टेप है कि अगर वो चुनाव अनाउंस करते हैं, जब तक चुनाव अनाउंस नहीं हो तब तक गैसिंग होगी। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये चीज चल रही है, उसके ऊपर तो हम ज्यादा बहस नहीं करेंगे, वो कल वहां से क्या फैसला आता है वो तो उनके ऊपर हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हम अभी जो तुषार मेहता साहब कह रहे हैं इस पर कितना भरोसा किया जाए, कितना ना किया जाए, जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं होंगे जम्मू कश्मीर में, और कभी एक बहाना होता है, कभी दूसरा बहाना होता है। गवर्नमेंट कहती है हालात ठीक हैं, सब कुछ ठीक है, तो हम 3 साल से कह रहे हैं कि जब हालात ठीक है तो चुनाव कराओ। और चुनाव के साथ जो दूसरी चीज है कि स्टेट का दर्जा भी बहाल करो। सुप्रीम कोर्ट में तो ये भी बहस चल रही है कि स्टेट को दर्जा जो है, यूनियन टेरिटरी में चुनाव कराना ऐसे ही है जैसे म्युनिसिपैलिटी है, तो स्टेट का दर्जा बहाल हो ताकि यहाँ के लोग नुमाइंदे बने, जो बड़े बड़े फैसले होते हैं वो फैसले लोगों के नुमाइंदे करें।
स्टेट का दर्जा बढ़ाने की जहां तक बात है, तुषार मेहता का ये कहना है कि यहाँ जम्मू कश्मीर में जो एलजी का प्रशासन है, काफी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, डेवलपमेंट का काम। मैं मनोज जी थोड़ा आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त कविंदर गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं राजन के साथ। राजन, कविंदर गुप्ता क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर? कुछ समय का वैसे रिएक्शन या जरूरी है? राजन जी। जी कविंदर जी, जिस तरह से ये सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये कहा है कि केंद्र सरकार किसी भी वक्त इलेक्शन करवा सकती है जम्मू कश्मीर में, आपका क्या रिएक्शन? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इसके लिए तैयार है और आज सॉलिसिटर जनरल श्रीमान तुषार मेहता जी के माध्यम से सरकार का जो रुख है वो सुप्रीम कोर्ट में रखा गया है। डिलिमिटेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। जब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई नोटिफिकेशन जारी करता है, प्रेरोगेटिव उनका है, तो भारतीय जनता पार्टी उसके लिए तैयार है। लोकतांत्रिक व्यवस्था बननी चाहिए, ऐसा मेरा मानना। आपको क्या लगता है कब तक इलेक्शन होने चाहिए, कब तक माहौल और स्थिति ऐसी हो सकती है? देखिए, जो एक पीरियड चाहिए होता है, 1.5-2 महीने का जो समय रहता है, जब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है, तो मुझे लगता है उसके लिए पहले भी तो दिसंबर में इलेक्शन हुए थे। अब तो अमरनाथ यात्रा भी समाप्त हो चुकी है। सिक्योरिटी फोर्सेस जो उसके लिए लगाई होती हैं वो भी अब फ्री होंगी। तो जब भी सरकार इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के माध्यम से डिक्लेयर करती है, तो एक साजगार माहौल है। पहले से मिलिटेंसी समाप्त हो चुकी है। इससे पहले लोकल बॉडीज और दूसरे इलेक्शन भी हो चुके हैं। 2014 में भी इलेक्शन जो हुए थे दिसंबर के महीने में हुए थे, अक्टूबर-नवंबर में नोटिफिकेशन जारी हुई थी। यानी आपका कहना है कि दिसंबर का महीना ठीक रहेगा इलेक्शन करवाने के लिए। और जो राज्य का दर्जा है उस पे आपका क्या कहना है? क्योंकि ये कहा गया है कि अभी जो विकास के काम है एलजी प्रशासन की तरफ से वो किए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, उसको लेकर क्या बीजेपी कहती है? देखिए, धारा 370 को हटाने के बाद जिस प्रकार का माहौल था, जरूरी था कि लॉ एंड ऑर्डर भारत सरकार अपने हाथ में लेती, तभी यूटी का दर्जा दिया गया था। तुषार मेहता जी के माध्यम से पहले भी ये कहा गया है कि यूटी जो है वो दोबारा से बनाई जाएगी, स्टेट द्वारा बनाई जाएगी। यूटी का जो दर्जा जो मिला है, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर केंद्र अगर अपने पास रखता है, ये परिस्थितियों की मांग है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह का भी डिक्लेरेशन होती है उसी हिसाब से काम किया जाएगा। लेकिन जो सियासी पार्टियां इस बात की मांग पे अड़ी हुई हैं कि पहले राज्य का दर्जा बहाल हो, उसके बाद इलेक्शन करवाया जाए, अब बीजेपी का क्या स्टैंड है उसमें? देखिए, हम भी यही चाहते हैं कि दोबारा सरकार बने। और माननीय गृह मंत्री जी ने कहा भी था कि जब भी हालात साजगार होते हैं, तो मुझे लगता है कि समय आ गया है। जब भी वो इस चीज को डिक्लेयर करते हैं, तो ये जो विपक्ष कह रहा है उससे पहले भारतीय जनता पार्टी कह चुकी है। हमने पिछले दिनों में देखा बीजेपी की कई समीक्षा बैठक हुई है और कई क्लोज डोर मीटिंग्स भी हुई है। हालांकि ये बीजेपी ने साफ पहले भी किया है कि लोकसभा की तैयारी उनकी चल रही है। आपको लगता है कि लोकसभा के साथ साथ असेंबली चुनाव होने चाहिए बीजेपी की तरफ से? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी पहले ही लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग कर रही है। तो हमने कहा है कि, लेकिन ये प्रेरोगेटिव मैंने पहले कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के संगठन का सवाल है, हम लगातार तत्पर हैं और इस लोकसभा इलेक्शन में भी पहले से बेहतर स्थिति में पूरे भारत में। चलिए, शुक्रिया आप कविंदर गुप्ता जी का। शुक्रिया राजन। और मैं मनोज जी आपके पास वापस आना चाहता हूं। कविंदर गुप्ता जी को जो कह रहा था उन्होंने अपनी बात कहती है। एक बात यहां पर साफ ये थोड़ा सा करना चाहूंगा कि सुनवाई के दौरान जो कुछ भी आंकड़े दिए जा रहे हैं एसजी या एसजी की जानिब से, उस पर कपिल सिब्बल ने जो ऑब्जेक्ट किया था कि ये मामला दरअसल अलग है और कोर्ट को इस क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए। यहां पर मामला जो जेर बहस है वो है संवैधानिकता का, कि संवैधानिकता का पालन किया गया या उसका उल्लंघन करते हुए जो है वहां पर 370 को निरस्त किया गया। बहरहाल मनोज, मैं फिर आपके पास आना चाहता हूं। जी जी मनोज, आपको मेरी आवाज आ रही है? वो आपके साथ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं, उससे आप मजीद ये प्रतिक्रिया लीजिएगा कि आप, एक तो उन्होंने पहले ये कह दिया कि ये बातें तो पहले से ही कही जाती रही है कि हम तैयार हैं
इलेक्शन कमीशन के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। लेकिन फिर ये जवाब भी आता है कि केंद्र सरकार जब कहेगी कि वहां पर हालात ठीक है तभी इलेक्शन कमीशन जो इस बारे में आगे बढ़ेगा। इससे आगे थोड़ा अगर देखें तो जो एनसी के प्रवक्ता हैं वो क्या कहना चाहते हैं कि ये जो हियरिंग चल रही है इससे उन्हें किस तरह की उम्मीद जग रही है या नहीं जग रही है, जो मेन कॉज जो है 370 का जिसको लेकर अर्जी दी गई है। जी जी बिल्कुल, मैं उनसे पूछूंगा शेख बशीर साहब, ये जो जिस तरह की अभी प्रक्रिया चल रही है, जो कोर्ट में 370 का मामला जो है अभी जेर बहस है, उस पर दोनों तरफ से अपने अपने पक्ष रखे जा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस को किस तरह की उम्मीद है, जिस तरह से अभी सुनवाई चल रही है, आपने देखा कि पूरा आप उसको देख रहे हैं, आपको क्या लगता है किस तरह की उम्मीद है आने वाले दिनों में, क्या कुछ हो सकता है कोर्ट के अंदर, क्या आप चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को जो बहस वहां सुप्रीम कोर्ट में हो रही है, जम्मू कश्मीर के लोगों को उम्मीद है कि इस पर इंसाफ मिलेगा। जम्मू कश्मीर के लोगों को 370-35A और रियासत जो है उस फॉरम में मिलेगी जिस फॉरम में ये 5 अगस्त 2019 में थी। अब चूंकि बहस हो रही है तो हम इस उम्मीद में बैठे हैं कि लोगों को इंसाफ मिलेगा। तो देखिए विशाल, इनका ये कहना है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, उन्हें पूरी ये उम्मीद है कि जिस तरह से यहाँ उन्होंने, इनकी पार्टी ने भी जो एक रेट पिटीशन डाली थी जिसमें ये कहा गया था कि ये असंवैधानिक तौर पर 370 को हटाया गया है, जैसा कि शेख बशीर का कहना है, वो बार बार ये कह रहे हैं और उनकी पार्टी लगातार ये कह रही है, उनके पार्टी के बाकी लीडरान भी ये कहते आए हैं कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से काफी उम्मीद है। हमने देखा कि उमर अब्दुल्ला ने कुछ दिन पहले ये कहा था कि उनका केस स्ट्रांग है, यानी उन्हें पूरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से। लगातार उन्हें लग रहा है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही है, जरूर उनका केस जो फैसला होगा वो उनके पक्ष में होगा। बहरहाल जिस तरह से अभी सुनवाई चल रही है कोर्ट में, किस तरह की आगे सुनवाई चलेगी और किस तरह से लोग इसमें पक्ष रखेंगे, जैसे आज सरकार पिछले 2 दिन से इसमें अपना पक्ष रख रही है, तमाम नजरें सुप्रीम कोर्ट पे हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, या चाहे आम लोग जो जम्मू कश्मीर के हैं विशाल, वो भी लगातार सुप्रीम कोर्ट पर नजर गड़ाए हुए हैं और उन्हें इसी बात का इंतजार है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में क्या फैसला देता है। बिल्कुल, ये काफी अहम होगा यहाँ पर। तो आपने सुना कि शेख बशीर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर है वो क्या कर रहे हैं। कविंदर गुप्ता हमारे साथ मौजूद है, राजन हमारे रिपोर्टर वो उनके पास गए हुए हैं। राजन, मैं एक सवाल उनसे लीजिएगा कविंदर जी से। मनोज जी, आपका शुक्रिया। राजन, आपसे मेरा सवाल यह है कि आप उनसे सवाल पूछिए कि ये एक तरफ कि इलेक्शन कब कराए जाएंगे और यूटी से राज्य की तरफ कब ये फिर से कदम बढ़ेगा। तो उस पर साफ कहना था कि ये यूटी जो है वो अस्थायी व्यवस्था है, लेकिन मैं निश्चित समय सीमा अभी नहीं दे सकता, ये एसडी ने कहा कि यूटी से राज्य की तरफ जाने वाला। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि इलेक्शन के लिए तैयारियां लगभग मुकम्मल है, लेकिन वहीं पर जब वो डेटा बताने लगते हैं कि इस तरह की जो विकास के आंकड़े सामने आ रहे हैं, इससे लगता है कि तस्वीर जो है वो घाटी में बदल रही है, विकास हो रहा है और रोजगार के मौके खुल रहे हैं, तब उस पर कपिल सिब्बल जब ऑब्जेक्ट करते हैं कि ये दूसरा लाइन है, ये दूसरी लाइन है, इस तरफ हमें नहीं जाना। जो अर्जियां हैं वो दरअसल संवैधानिकता को तय करने के लिए है कि संवैधानिक अमल से ये 370 को रेस्ट किया गया या नहीं। तो इस पर सीजीआई ने कहा कि हम उससे अलग नहीं हटेंगे, ये मामला संवैधानिकता को तय करने वाला ही रहेगा। इस पर रिएक्शन ले लीजिए आप। जी बिल्कुल कविंदर जी, जिस तरह से जो इसकी संवैधानिकता है, जो इसका तो उस पर भी ये कहा गया है, हालांकि कोई समय सीमा नहीं दी गई है कि राज्य का दर्जा कब तक बहाल किया जाएगा। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस पर शायद मेरा बोलना ठीक नहीं है। केंद्र में जो सरकार बैठी है, उन्होंने जब ये कहा है सुप्रीम कोर्ट, तो स्वाभाविक बात है कि कोई टाइम बाउंड सिस्टम तो होगा ही। तो मुझे लगता है जल्द, जब हालात ठीक हैं तो जल्द ही इसको विचार किया जाएगा और दर्जा दिया जाएगा। जो इसकी अहम बात आ रही है कि जो संवैधानिक जो इसका एक प्रोसेस होता है, उस पे सीजीआई ने कहा है कि उसको उससे अलग नहीं किया जाएगा इसको, तो उस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसी के अनुसार सब बातें चलेंगी। तो सरकार ने ये कह दिया है कि जल्द ही ये जो राज्य का दर्जा है द्वारा बहाल किया जाएगा, लेकिन हालात को देखते हुए मुझे लगता है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है केंद्र अपने पास रखेगा। बिल्कुल, जैसे कि विशाल इनका कहना है कि जो केंद्र ने अपना जो जवाब है वो दे दिया है और उस पर जो भी टिप्पणी करनी होगी वो सॉलिसिटर जनरल की तरफ से की जाएगी। राजन, एक सवाल और कीजिएगा उनसे। बीते 5 सालों में
कविंदर जी क्या बताते हैं कि हालात बेहतर हुए या नहीं? अगर बेहतर हुए तो चुनाव में देरी क्यों? अगर चुनाव में देरी हुई तो क्या समझा कि हालात बेहतर नहीं हुए? सीधा सवाल। जी, सीधा सवाल आपसे ये है कि जब बीजेपी ये कहती है कि हालात अच्छे हुए हैं, विकास के काम हुए हैं, टूरिस्ट इनफ्लो बहुत ज्यादा हुआ है, तो आपको लगता है कि इस वक्त हालात अच्छे, इलेक्शन होने चाहिए, या बीजेपी मानती है कि हालात ठीक नहीं है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था को दोबारा कायम करने की मांग करती है और ये भारतीय जनता पार्टी इस पर जल्द पहले विचार भी कर रही है और कहा भी है। तो मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का प्रेरोगेटिव है, जब भी वो डिक्लेयर करते हैं हम तो तैयार हैं, हम लगातार लोगों के बीच में हैं। जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट का एक नया दौर। तो क्या कविंदर जी को यह लगता है कि इलेक्शन कमीशन को केंद्र से किसी इशारे का इंतजार है या केंद्र सरकार के कहने का इंतजार है? बढ़िया। तो आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी इसी इंतजार में है कि कोई उनको संकेत मिले? बिल्कुल, ये उनका काम है, जो इलेक्टोरल रिव्यू उन्होंने करना है उसको करें और हम तैयार हैं। तो विशाल, इनका कहना है कि हम तैयार हैं, हमें अगर संकेत अगर इलेक्शन कमीशन अगर जब भी अनाउंस करता है हम तैयार हैं, और वाकई इनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन को भी एक संकेत का इंतजार है और बीजेपी जो है, जो संगठन है इसका, वो तैयार है इलेक्शन के लिए किसी भी वक्त जम्मू कश्मीर में। चलिए, बहुत शुक्रिया तो आप लोगों का। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेंगे। बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर यह हियरिंग चल रही है और बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो अटॉर्नी जनरल है या सॉलिसिटर जनरल है वो आंकड़े रख रहे हैं कोर्ट के सामने। वो ये बता रहे हैं कि किस तरह की स्थितियां बदली हैं, वो ये बता रहे हैं कि कैसे वहां पर हालात जो है सामान्य की तरफ होते चले जा रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि कैसे वहां पर जो पथराव की घटनाएं ज्यादा होती थी वो अब 90% से ज्यादा कम हो गई हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा। वो ये बता रहे हैं कि किस तरह से वहां पर रोजगार के मौके खुल रहे हैं। लेकिन कपिल सिब्बल जो अर्जी गुजारों के वकील हैं वो इस पर ऑब्जेक्शन करते हुए कहते हैं कि यह मामला अलग है। बहस इस बात को लेकर चल रही है कि क्या 2019 में जो 370 का निरस्तीकरण किया गया, वो निरस्तीकरण का पूरा अमल क्या संवैधानिक था, आईनी था या गैर आईनी था? इस पर उन्होंने सीजीआई को कहा कि आप इस क्षेत्र में न जाए। तो सीजीआई का कहना था कि जो मामले की संवैधानिकता तय करने का जो मामला है उस पर इसका असर नहीं पड़ेगा। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। इंदौर के द्वारकापुरी थाने में साली ने रची जीजा को लूटने की साजिश। पुलिस ने पत्नी, साली के पति सहित 7 लोगों को किया गिरफ्तार। दमोह के हटा में नगर पालिका के कर्मचारी ने की खुदकुशी। नगर पालिका के अधिकारी की प्रताड़ना से परेशान था शहजाद। सीएमओ राजेंद्र खरे देते थे नौकरी से निकालने की धमकी। ग्वालियर जिले में बस में छात्रा को छेड़ना कंडक्टर को पड़ा महंगा। छात्रा ने पुलिस की बेटी की पेटी में डाला शिकायती पत्र। पुलिस की गिरफ्त में आरोपी कंडक्टर। बिलासपुर और दुर्ग के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल। बिलासपुर में संकल्प शिविर में होंगे शामिल। दुर्ग में पाटन के शिव मंदिर में जलाभिषेक। घोषणा पत्र को लेकर महिलाओं से भी सुझाव लेगी कांग्रेस। 3 महिलाओं की बनी सब कमेटी। 4 सितंबर को पेश होगी रिपोर्ट। 11 सितंबर तक वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा सकेंगे लोग। निर्वाचन आयोग की टीम का फैसला। नए वोटरों पर आयोग का फोकस। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में फिर सामने आया मतभेद। कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह पर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान। आरोप लगाने वालों से कोई समझौता नहीं। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मामले। अब तक मिले 247 मरीज। स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश से सभी नगर निगम की ली बैठक। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। तो इस वक्त जो एक बहुत ही अहम सुनवाई जारी है, समाअत जारी है, वो सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में जो धारा 370 के यानी अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण के मामले के खिलाफ जो अर्जियां दी गई थी उस पर हियरिंग चल रही है और उसमें
इस वक्त जो सरकार का पक्ष रख रहे हैं एसजी और उस पर ये बातें हो रही हैं। इस वक्त जो है अटॉर्नी जनरल है वो अपनी बातें वहां रख रहे हैं। कौन है? और इस वक्त हमारे साथ पीडीपी लीडर ताजिम डार जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर ज्यादा टंकर साथ। जनाब आपका स्वागत है। मेरा सवाल आपसे ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह की बहस चल रही है, जिस तरह की दलीलें दी जा रही हैं, ये दो जो सवालात किए गए थे 12वें समाअत के दिन, 12वें दिन के समाअत में, जिस पर आज जवाब सरकार की तरफ से, मरकजी सरकार की तरफ से तुषार मेहता ने रखा है। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। जब इलेक्शन कमीशन चाहे इलेक्शन हो सकता है, क्योंकि जो अपग्रेडेशन है उसका वोटर उनका वो सब रेडी हो चुका है। एक तो ये, इस पर आप क्या कहेंगे? दूसरा ये, उन्होंने कहा है कि जो आरजी है, ये जो इंतजाम है यूटी के नाम पर, इसे स्टेट में बदला जाएगा, लेकिन उसके लिए हम एक फिक्स टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। आपका रिएक्शन? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए 2019 को जब जो एब्रोगेशन हुई थी, उस वक्त ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जी, जो होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी ने कहा था कि हम यूटी को स्टेट में का दर्जा जो है वो दिया जाएगा। आप देखिए उस बात को भी 4 साल गुजर चुके हैं, तो आप ये कहने जा रहे हैं कि हम आपको स्टेट का दर्जा वापस देंगे लेकिन टाइम फ्रेम नहीं देंगे। ये कौन सी बात है? आज जम्मू कश्मीर के तमाम लोग जो है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। आपने हमारा स्टेट का दर्जा जो है वो हटा दिया, आपने धारा 370 हटा दी, आपने यहाँ के लोगों को आज आप देख रहे हैं जिस तरह से जम्मू में, कश्मीर में हर जगह एहतजाज हो रहे हैं। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों की उम्मीदों और उमंगों के खिलाफ ये फैसला करके किस तरह से इन्होंने यहाँ के लोगों की एस्पिरेशन को दबाया है। तो मैं समझता हूँ कि ये कहना कि हम टाइम फ्रेम नहीं दे पा रहे, इससे इनकी मंशा ये जाहिर होती है कि अगर कल को ये इलेक्शन कोई करवाने जाते भी हैं तो उसमें भी किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई धांधलियां सामने आएंगी और किसी तरीके से किसी न बाइहुक और बाइफुक हम हुकूमत को किसी तरह से अपने हाथ में ले लें। यहाँ से तो यही जाहिर होता है। और जहाँ तक बात रही इलेक्शन की, इलेक्शन तो पिछले आज कब से कहने जा रहे हैं, लास्ट इलेक्शन हमारे हुए थे 2014 में, उसके बाद आज तक इलेक्शन का कहीं नामो निशान नहीं है। तो इसलिए लोग परेशान हैं और जब तक अवामी हुकूमत कोई बरकरार इक़्तिदार ना हो तब तक अगर आप लोगों को सोने की सरगर्मी डाल के दे देंगे तब तक भी लोग सेटिस्फाइड नहीं होते। जब तक आप लोगों के अपने चुने हुए नुमाइंदे सामने नहीं होंगे, कब तक आप ब्यूरोक्रेसी के थ्रू, कब तक आप बाहर से लाए हुए लोगों के थ्रू यहाँ पे गवर्न करके लोगों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे। आज यहाँ पे जम्मू का डोगरा, लद्दाख का लद्दाखी, करगिल का रहने वाले लोग, कश्मीर के रहने वाले लोग, तमाम लोग जो है वो इस वक्त सरापा एहतजाज है। वो अपने खोए हुए तशक्कुस को बहाल करने के लिए मांग कर रहे हैं और मरकजी हुकूमत को चाहिए कि वो फौरी तौर पर जम्मू कश्मीर का जो अपनी शान और शौकत है वो वापस लौटाए, ताकि जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो दोबारा से सुख की सांस जो है वो ले सके। जी, एक और सवाल यहाँ पर है, अब जब आपको क्या इससे इशारा मिलता है आपकी पार्टी को, या आपको क्या ऐसा लगता है कि वाकई अब ऐसा मौका आ गया है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है, खासतौर से मरकज के इस जवाब के पेश नजर? तो क्या उसके लिए आप फिक्स है? आपको लग रहा है कि आपकी उम्मीद बढ़ रही है, या फिर वैसे ही जैसे काफी महीनों से कहा सुना जाता आ रहा है कि होगा 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 होगा, कब होगा पता नहीं? देखिए, ये मैं पहले ये कहूँ कि ये किसी एक जमात या किसी एक पार्टी की बात नहीं है। ये रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के जहनों की, उनकी एस्पिरेशंस का मसला है, यहाँ के लोगों की बात है। ये कोई एक पार्टी या किसी एक तंजीम का मसला नहीं है। आप जम्मू कश्मीर में हर एक आदमी से बात कर लीजिए, हर एक आदमी से पूछ लीजिए, वो कहीं भी रहता हो, वो चाहता है कि हमें इस निजाम से छुटकारा मिले जो इस वक्त अफसरशाही का निजाम है, जहाँ कोई किसी को पूछता नहीं है, कोई किसी की कोई नुमाइंदगी नहीं है। अगर आपने कुछ पंचायती और अर्बन लोकल बॉडी बनाए भी हैं, उन्हें भी आपने इरेलीवेंट करके रख दिया, उनकी कौन सुनता है, कौन पूछता है? आज जो मनचाहे फैसले जो है वो लिए जाते हैं, लोगों के जज्बातों के साथ खेला जाता है। मैं नहीं समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं एक लोगों के साथ खिलवाड़ है और ये लोगों के जज्बात की बात है, किसी एक जमात या किसी एक पार्टी का मसला नहीं है। ये लोगों के, जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोगों के जज्बात का मसला है और इस वक्त लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जी, ताजिम डार आप हमारे साथ बने रहे। इस वक्त सलमान निजामी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डीपीएपी के सीनियर लीडर हैं। सलमान निजामी, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 JKLH में। मेरा ख्याल है, मैं समझता हूं कि आप सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग को बगौर सुन और देख रहे होंगे, चूंकि लाइव स्ट्रीमिंग उसकी होती है। तो फिर भी आपको ये बता दूं कि मरकज का जो जवाब था चुनाव को लेकर के, चुनाव की तारीख और ये अगर आर्जी है ये यूटी का निजाम, तो फिर ये कब तक आर्जी है, इस पर यह कहा गया। दो जवाब आए, एक आया कि चुनाव के लिए हम तैयार हैं,
किसी वक्त यार चुनाव हो सकते हैं, हम तैयार हैं। बरकस का जवाब है जो एसजी ने रखा, सोलिसिटर जनरल ने। दूसरा ये कि ये आर्जी है जो ये यूटी का निजाम है, इसे रियासत में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर से रियासत का दर्जा बहाल किया, लेकिन उसका टाइम फ्रेम फिक्स नहीं दे सकते। आपका रिएक्शन? देखिए, सेंटर ने जो आज जवाब दिया है वो इस चीज को साफ करता है जो गुलाम नबी आजाद साहब ने बार बार अपने बयानों में या पार्लियामेंट में जिस तरीके से बताया कि आर्टिकल 370 के हटने के बाद कुछ चेंजेस नहीं आएंगी। और जैसे आपने देखा कि मिलिटेंसी जो है उसमें दावा तो किया जाता है, लेकिन अभी भी जो दावे बीजेपी के नेता या लीडर्स करते हैं कि भाई मिलिटेंसी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, वो नहीं है। और हम पहले दिन से यही मुतालबा कर रहे थे कि अगर जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी हुई है जो आप दावा कर रहे हैं, तो इलेक्शन जल्द से जल्द होने चाहिए। अब कब करवाएंगे इलेक्शन, ये तो हम कई बार सुन चुके हैं। बीजेपी के नेताओं ने, पार्लियामेंट में भी, मिनिस्टर्स ने भी ये कहा है कि इलेक्शन होंगे, लेकिन कब होंगे? गवर्नर साहब ने भी कहा, ये नहीं जो है क्लियर कर पा रहे हैं बीजेपी के लीडर या गवर्नमेंट कि भाई जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कब होंगे। दैट मीन्स कि अभी भी कश्मीर में इनसिक्योरिटी है और जो नॉर्मलसी दिखाई जाती है वो नहीं है। अगर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होते कि भाई जम्मू कश्मीर में आप ये इनसिक्योरिटी वाली जो आप बात कर रहे हैं, इनसिक्योरिटी मतलब क्या ये पॉलिटिकल लहजे में आप कह रहे हैं? इनसिक्योरिटी टू होम, टू एनी पार्टी, और इनसिक्योरिटी टू द पीपल? सिक्योरिटी है, जैसे हालात जो है वो नहीं है। ये क्या रुकावटें आ रही है, ये बार बार कहा जाता है। जिस तरीके से दावा किया जाता है बीजेपी की हुकूमत की तरफ से कि भाई इलेक्शन होंगे, लेकिन कब होंगे? अभी तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये भी कहा कि अभी वक्त लगेगा स्टेटहुड को रिस्टोर करने के लिए। तो क्या रुकावटें आ रही हैं, क्या परेशानी है भाजपा की हुकूमत को कि वो इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं, स्टेटहुड रिस्टोर नहीं कर रहे हैं? तो यही हमारा मानना है कि अगर नॉर्मलसी के दावे आप कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट में आपको कहना चाहिए कि भाई इस टाइम पे इलेक्शन होंगे। अब मुझे नहीं लगता इस साल इलेक्शन होंगे, क्योंकि आज आप देखिए जम्मू कश्मीर में पहाड़ी इलाके, ज्यादातर हमारे पहाड़ों में लोग रहते हैं और बर्फ और बारिश का सिलसिला जो है अक्टूबर के बाद शुरू होगा। तो मुझे नहीं लगता कि सर्दियों में जो है इलेक्शन होंगे। तो ये बात अगले साल पे ही आती है जो एक्सक्यूजेस भाजपा दे रही है बार बार, और ये भी कहा गया कि स्टेटहुड अभी हम नहीं दे सकते। तो इससे वो एक्सपोज हो गए कि जो नॉर्मलसी का दावा वो कर रहे हैं, तो वो नॉर्मलसी पूरी तरीके से कश्मीर में अभी तक नहीं आई है। इसीलिए रुकावट है, इसीलिए बहानेबाजी। बार बार आज सुप्रीम कोर्ट के सामने भी कह रहे हैं अभी वक्त लगेगा। तो इलेक्शन कब होंगे उसका अगला सवाल आपसे करना चाहूंगा सलमान, चूंकि जो बात हो रही है वो दरअसल इस सवाल को लेकर हो रही है कि क्या 2019 में जो इसको एब्रोगेट किया गया आर्टिकल 370 को, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनली किया गया या अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से कर दिया गया? मेन समाज इसको लेकर हुई है। कपिल सिब्बल साहब ने बीच में ऑब्जर्व भी किया था कि ये हम किस फील्ड में जा रहे हैं, दरअसल ये हमारा कंसर्न नहीं है, हमारा सवाल ये है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या आपको लग रहा है कि ये जो सुनवाई अब तक चल रही है, अब तक जहां तक पहुंची, वो बिल्कुल उसी समत जा रही है या फिर इसमें कुछ और चीजें? पहले भी, क्योंकि हमारे कायद जो गुलाम नबी आजाद साहब है, उन्होंने भी ये पार्लियामेंट में अपनी स्पीच में कहा था कि अनकॉन्स्टिट्यूशनली जो है आर्टिकल 370 को हटाया गया। क्योंकि जब तक आप जम्मू कश्मीर की आवाम को कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे, तब तक आप कोई फैसला नहीं ले सकते। हम बार बार ये कहते हैं कि अगर हमें आप कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है हकूक देंगे, तो जम्मू कश्मीर में सबसे पहले जो है इलेक्शन होने चाहिए जी। और दूसरी बात जो है हमारे हकूक जो छीने गए उनको वापस किया जाना चाहिए। ये अगर आपने दावे पहले किए थे कि भाई ये चेंजेस आएंगी, तो चेंजेस वो तो नहीं आई ना। पहले भी अगर हुकूमतें रही तो नॉर्मलसी पहले भी थी और मिलिटेंसी का मुकाबला पहले की हुकूमतें भी करती आ रही हैं। जब गुलाम नबी आजाद वजीर आला थे तो उन्होंने भी मिलिटेंसी का मुकाबला किया। ठीक है, हमारे साथ ताजिम दार भी है पीडीपी से। ताजिम, मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं कि अब तक जो समाज चल रही है, जो सवाल है या जिस पर एतराज है, जिस एतराज के साथ पिटीशन दायर की गई है, क्या आपको लग रहा है आप कि ये समाज उसी समत बढ़ती चली जा रही है? आपका अभी तक के हियरिंग पे क्या कहना है? देखिए, ये तो मैं इस पे कोई प्री जज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही डिसाइड करेगा मैटर इस पे क्या डिसीजन आता है। लेकिन एक बात जो समाज चल रही है, जो दलीलें दी जा रही हैं, उससे बहुत सारी चीजें जो है वो साफ हो रही है। तो एक चीज आम आदमी होने की हैसियत से ये
कि एक चीज क्लियर होती है कि जम्मू कश्मीर के लोगों का जो मौकफ था वो कहीं ना कहीं जस्टिफाइड होता हुआ नजर आता है इस समाज जो अभी तक चल रही है। और जैसा पहले भी कहा है और अभी सलमान साहब ने भी यही कहा कि ये फैसला लोगों का था और लोगों ने लेना था। डेमोक्रेटिक सेटअप में फैसले थोपे नहीं जाते हैं, लोगों के जज्बात और एहसास की तर्जमानी की जाती है और लोगों से पूछा जाता है कि कौन से फैसले हैं। हम कोई तानाशाही में तो रह नहीं रहे जहां आप फैसला करके लोगों के ऊपर थोप देंगे पूरा जम्मू कश्मीर एक जेल में कन्वर्ट करके आपने, अरे भाई जिस दिन आपने 2019 में एब्रोगेट किया था तो जम्मू कश्मीर के लोगों को खुला छोड़ते ना सेलिब्रेट करने के लिए। जम्मू कश्मीर के लोगों को आपने इस वक्त ओपन एयर जेल कन्वर्ट करके आप लोगों ने बंद करके हमारे मुकद्दर का फैसला आपने पार्लियामेंट में किया और हमें पता तक नहीं। तो डेमोक्रेसी में ये चीजें जो हैं उनकी कोई जवाबियत कोई जगह नहीं है। हम कहते हैं कि आप लोगों पे फैसला छोड़िए। लोग अगर कहते हैं आर्टिकल 370 जाए तो जाए, अगर लोग कहते हैं कि धारा 370 और 35 नहीं रहना चाहिए तो बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। लेकिन आप लोगों से पूछें भी ना, लोगों से बात भी ना करें और लोगों को आप सिर्फ उनको ये एहसास और ये बावर करवा दें कि आपकी हैसियत जो है वो कोई मायने नहीं रखती है। तो डेमोक्रेसी में सबसे स्याह दिन के तौर पर माना जाता है इस चीज को। और मैंने ये कहा है ना, तो हिंदुस्तान की बहुत बड़ी मदर ऑफ डेमोक्रेसी माना जाता है। तो जहाँ पे ऐसे फैसले लेना लोगों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ है, इससे ज्यादा और मैं क्या कह सकता हूँ। बाकी सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला जेर समाअत है, वहां से क्या फैसला होकर सामने आएगा क्या नहीं आएगा ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही डिसाइड करेगा। उसके प्रीजन करना जो है मैं फैसले के बारे में पूछ नहीं रहा, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि अब तक जो पेशरफ्त हुई है तो क्या आपको लग रहा है कि आपका अपना मौकफ इसमें जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। सलमान, मैं आपसे भी सवाल करना चाहूंगा, अब तक जो हियरिंग चली है, अब तक जो बहस हुई है, दलीलें दी गई हैं, क्योंकि अब दो तरफा बातें आ गई ना, अब तो जो अर्जी गुजार थे उनकी दलीलें भी सामने आ गई और बरकस का भी जो है पहलू या पक्ष या स्टैंड सामने आ रहा है जवाब की शक्ल में। तो क्या लग रहा है सलमान, आपको क्या लग रहा है, आपकी पार्टी या आप कैसे देख रहे हैं ये समाअत किस तरफ जा रही है? हाउ कॉन्फिडेंट, हाउ श्योर आर यू? जिस तरीके से कपिल सिब्बल साहब जो सुप्रीम कोर्ट के बहुत वकील हैं, जिस तरीके से उन्होंने एक शेर की तरह, जो आजाद साहब ने कहा भी था, लड़ा, जम्मू कश्मीर की आवाम की वकालत सुप्रीम कोर्ट में की, वो काबिल तारीफ है। और उन्होंने साफ कर दिया, जैसे अभी भी हमारे साथी ताजिम साहब ने कहा, कि अगर यहाँ की बीजेपी को मैंडेट जम्मू कश्मीर की आवाम ने दिया होता, पूरी मेजॉरिटी में बीजेपी होती, तो हम कहते कि भाई जम्मू कश्मीर के लोगों ने 370 हटने के हक में जो है वोट दिए थे, इसीलिए बीजेपी ने हटा दिया जी। लेकिन उनको मेजॉरिटी यहाँ नहीं मिली। अगर हम मेंबर पार्लियामेंट्स की बात करें तो मेंबर पार्लियामेंट ने भी मेजॉरिटी में अपोज ही किया उसको। तो जम्मू कश्मीर के लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, उनको पिंजरे में कैद करके उनका फैसला लिया गया। अब गिलगित की बात आप करते हैं कि भाई हम पीओके को लाएंगे, वहां जो है प्रोविंस का स्टेटस पाकिस्तान देता है और हमें यहाँ पर जो स्टेट थी वो हमसे छीनी गई। तो जो जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अहम हिस्सा है, उस वहां के लोगों को इख्तियारात ही नहीं दिए गए हैं कि वहां वो अपील भी करें, आवाज उठाएं कि भाई हमारे इलेक्शन हो, ये सरकार गलत कर रही है, या तो पीएसए लगता है, या तो यूएपीए लगता है, या तो कोई फर्जी केस में फंसाया जाता है। तो ये डिक्टेटरशिप जो है क्यों हो रही है जम्मू कश्मीर में? ये मैं आपका तासुर जानना चाहता आप दोनों का कि दोनों पार्टियों का तासुर क्या है कि अब तक की हेयरिंग को लेकर के, जो कि दलीलें सब अपनी तरफ से रख रहे हैं। पहले अर्जी गुजारों की तरफ से दलील रखी गई, वकीलों ने रखा, फिर अब सरकार का पक्ष रखा जा रहा है। इसी बीच ये सवाल जवाब हुए हैं कि आखिर ये लोकतंत्र को कब तक होल्ड करके रखा जा सकता है, चुनाव कब हो सकते हैं, कब तक होंगे, और ये जो यूनियन टेरिटरी अगर अस्थायी है तो ये अस्थायी नहीं होगा, तो फिर इसका मतलब है कि राज्य का दर्जा कब तक बहाल होगा। तो जवाब दिए गए हैं कई तरह से, इस पर आगे बातचीत भी होती रही है। फिलहाल आप दोनों का शुक्रिया अदा करता हूं मैं, ताजिम डार और सलमान रिजवी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द हाजिर होते हैं। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण।
पेट सफा तो हर रोग दफा। और एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं JKLH लाइव। बहुत ही क्रूशल मोड़ पर, बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर ये समात पहुंच चुकी है, जहां पर जो सॉलिसिटर जनरल है वो जो है सरकार का पक्ष रखते सुने गए। और उससे पहले उन्होंने कहा कि मरकज किसी भी वक्त इंतखाब के लिए तैयार है, ये सॉलिसिटर जनरल का कहना था। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि चुनाव कब तक होंगे, इस सवाल का जवाब यही है कि मरकज बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है और किसी भी वक्त चुनाव हो उसके लिए तैयार है। दरअसल असल जो चुनाव का मतलब यह था कि जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव, यानी असेंबली के इंतखाबात कब होंगे। वहां की पॉलिटिकल पार्टियां भी लगातार सवाल उठा रही है कि इंतखाबात क्यों नहीं हो रहे हैं, अगर हालात बेहतर हैं तो इंतखाबात क्यों नहीं हो रहे हैं। खुर्रम हमारे से जुड़ चुके हमारे संवाददाता दिल्ली से ज्यादा जानकारी साथ। खुर्रम, मैं आपके पास आना चाहूंगा, इंतखाबात को लेकर जो सवाल था और साथ ही ये सवाल था कि अगर आरजी है ये यूटी का इंतजाम तो फिर कब वो क्या रोड मैप है, क्या टाइम फ्रेम है जब आप जो है इसे फिर से रियासत दर्जा दे देंगे। इसका जवाब उन्होंने आज दे दिया है सुशील जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने। लेकिन जवाब पे जो मैंने रिएक्शन दिया कई दूसरे सियासी दलों का, सबका यही कहना था कि ये जवाब तो पुराना है, इसमें कुछ नयापन नहीं है। वो तो बरसों से कहते चले आ रहे हैं या महीनों से कि हालात बेहतर होंगे तो इंतखाबात हो जाएंगे। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मरकज तरफ से कहना कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, चुनाव कभी भी कराए जा सकते हैं, इस पर क्या कहना। विशाल, देखिए जो इसमें नया है वो ये है कि सरकार ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा कि हम इंतखाबात कराने के लिए, चुनाव कराने के लिए तैयार हैं और एक रोड मैप भी बताया है कि ये नया है। अब तक जो तमाम बातें कही जाती थी कि कैसे जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली होगी, किस तरीके से वहां पर चुनाव होंगे, किस तरीके से वहां पर आगे तमाम चीजें रहने वाली हैं, क्या लद्दाख जम्मू कश्मीर का हिस्सा रहेगा, ये तमाम जो चीजें थी, एक पूरा सिनारियो जो था, जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं साफ हुई है। और मरकजी हुकूमत की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जिस तरीके से कहा है कि पहले वहां पर त्रिस्तरीय पंचायत का जो फार्मूला है वो हमने नाफिज किया है, पहले पंचायत के चुनाव होंगे और उसके बाद वहां पर जो लोकल बॉडी के चुनाव है यानी कि नगर पालिका के चुनाव है वो पहले फिर वो होंगे और उसके बाद असेंबली इंतखाबात का जो है वो मौका आएगा, उसके बाद असेंबली इंतखाबात हो सकते हैं। आपको मालूम है कि कुछ चुनाव पहले भी अभी लद्दाख में हुए हैं, करगिल में हुए हैं, कुछ होने वाले हैं, तो लोकल बॉडी के चुनाव है बहरहाल वहां हुए हैं। लेकिन अब ये साफ तौर पर जो आगे की तस्वीर है वो कहीं ना कहीं ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में साफ हुई है। अब तक भारतीय जनता पार्टी या मरकजी हुकूमत के जो तमाम लीडर्स हैं, बीजेपी के तमाम लीडर्स हैं, वो ये कहते रहे हैं हम चुनाव के लिए तैयार हैं और हमने सरगर्मियां देखी भी हैं। और ये जहां तक तुषार मेहता ने जिस तरीके से बताया कि वहां पर वोटिंग लिस्ट की तैयारी हो रही है, वोटर लिस्ट तैयार है, तमाम चीजें हो रही हैं, तो तैयारी करना। लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि किस तरीके से चुनाव होगा। ये पहले भी भारतीय जनता पार्टी कहती रही, सरकार कहती रही, लेकिन इसमें नयापन ये है कि अब एक तरीके से चुनाव आयोग के सामने पूरी तरीके से जो गेंद है वो चुनाव आयोग के पाले में है और रास्ता खुला हुआ है कि वो कभी भी चुनाव का ऐलान कर सकता है। 2024 में जिस तरीके से लोकसभा इंतखाबात होने हैं, चुनाव होना है, उसको लेकर के जिस तरीके से तमाम नेता अपने गठबंधन को लेकर के मुंबई में जिस तरीके की मीटिंग हो रही है इंडिया अलायंस की, उसको पस मंजर में अगर आप रखते हुए देखें तो लोकसभा चुनाव के साथ भी ये चुनाव हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक रोड मैप सरकार की तरफ से दिया गया है। जहां तक स्टेटहुड की बात है, जाहिर सी बात है पॉलिसी मैटर है, तो सरकार की तरफ से साफ इशारा है कि पहले वो चुनाव कराना चाहती है और उसके बाद स्टेटहुड देना चाहती है। इसलिए कोई भी वाज़ेह तौर पर, साफ तौर पर कोई बात है वो नहीं कही गई है। लेकिन अगर दूसरी चीजों की देखें, हालांकि अगर आप देखें इस पूरे केस को, तो ये केस इससे रिलेटेड ही नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगा कि इसकी जो शुरुआत हुई थी, ये जो पूरा मुद्दा निकल कर आया, जिस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक सवाल उठाया था कि जो तमाम अर्जी गुजार है, यहाँ पर जो याचिका करता है, उनके जो वकील हैं वो ये सवाल उठा रहे हैं तरीके से एक पूरे स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया जा सकता, खासतौर से लद्दाख के पस मंजर में। लद्दाख को लेकर के ये सवाल किया गया था कि लद्दाख वहां पर यूटी है और लद्दाख का आगे क्या होने वाला है, क्या डिग्रेड किया जा सकता है किसी स्टेट को। इस बुनियाद पर यह सवाल वहां से शुरू हुआ था और फिर साथ ही साथ चीफ जस्टिस ने, क्योंकि यह सवाल फिर इस जोड़ दिया था कि जम्मू कश्मीर में 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं राष्ट्रपति शासन को। सदर जमहूरिया का राज जो होता है वो 3 साल तक मैक्सिमम
हो सकता है, जैसे कि हम पार्लियामेंट का जो समय है उसका जो मुद्दत कार है उसको हम 6 महीने आगे बढ़ा सकते हैं, 6 महीने कम कर सकते हैं, इसी तरीके से 3 साल तक हो सकता है। लेकिन ये आगे निकल चुका है, तो सरकार के लिए भी अपनी जो स्थिति है, अपनी जो पोजीशन है उसको साफ करना ये महत्वपूर्ण हो गया था। यही वजह है कि आज जो तुषार मेहता ने ऑन रिकॉर्ड एक तरीके से पॉलिटिकल रोड मैप वो कहीं ना कहीं साफ कर दिया है, क्योंकि तमाम तरह का दबाव वहां की तमाम जो सियासी पार्टियां हैं, फारूक अब्दुल्ला से लेकर जो दूसरे तमाम जो अपोजिशन के लीडर हैं, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, चाहे कांग्रेस के लीडर हो, चाहे गुलाम नबी आजाद हो, हमने यहाँ पे दिल्ली में देखा था किस तरीके से उन लोगों ने चुनाव आयोग वो लोग गए थे और एक मांग की थी कि वहां पर चुनाव होने चाहिए, स्थिति ठीक है। लेकिन कुल मिलाकर के एक रोड मैप विशाल जरूर सामने आया है। जी बिल्कुल, ये रोड मैप आप कह सकते हैं, लेकिन इसमें कोई जो था कि कब तक, तो ऐसा लगता है कि कब तक का जो है जवाब अभी भी नहीं मिल पाया। लेकिन हाँ, ये जरूर मिल गया, या इशारा जरूर मिल गया कि आप उनसे पूछिए। मतलब इलेक्शन कमीशन जो है उस पर आपने कहा कि वो जो गेंद है वो इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में चला गया है कि इलेक्शन कमीशन ही जो है वो जिम्मेदार है पूरी तौर पर कि वो जब चाहे चुनाव करा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका खुद तमाम जानकारी के लिए। तो काफी दिलचस्प बरहला और बोर्ड अभी हियरिंग के दरमियान आ रहा है, कई तरह की बातें सामने आ रही हैं और असल में जो सुप्रीम कोर्ट में यह मुद्दा है वो इसी को लेकर है कि जिस तरीके से 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया, उस पर एतराज किया गया था कि यह तरीका आईनी नहीं है, ये गैर आईनी है। सवाल जवाब दरअसल उसको लेकर हो रहा है, लेकिन उसके सिलसिले में कई जवाब और कई सवाल सामने आ चुके हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JK न्यूज़ में लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।